ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ नहीं है, यह भी जरूरी है कि खेत विचों हटाउणा है, ये भी जरूरी है। इसलिए हुण इसका हल लभ लिया गया है। तकनीक दे नाल पराली तो खाद बनाई जाती है, जिस दे नाल फसल की पैदावार विच सुधार आउंदा है। उत्थे ही फसल रवायती तरीके नाल किवें रूढ़ी नाल ऑर्गैनिक फसल तैयार हुंदी है, इस उत्ते ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਬਰ। ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ PM ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ 50% ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇष रिपोर्ट। और किसानों को आमदन भी हो सके। बिल्कुल, देखिए पराली का प्रबंधन ये नहीं है कि पराली को आपने जलाना है और पराली को आपने हटाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप चाहिए। अब उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया कि जलाने से तो ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर हैं वो लॉस होंगे और जो हमने ज़मीन से निकाले हैं वो ज़मीन को वापस जाने चाहिए। तो कुछ न्यूट्रिएंट इसके अंदर ऐसे हैं जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू नहीं दे सकते, तो इसलिए इस पराली को कैटल डंग के साथ मिला के एनारोबिक फर्मेंटेशन करके 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको एक है CBG और दूसरा है FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की एज है ओवर फार्म यार्ड मैन्योर या जो पंजाब में मशहूर है रूढ़ी के नाम से, क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है, वेयर एज FOM जो है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना है। बाकायदा उसकी स्टेजेस होती हैं, 45 to 50 डेज़ उसको लगते हैं फर्मेंट होने को। अगर आज आपने फीड किया तो फिर जो आउटपुट आता है वो इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस और इन द फॉर्म ऑफ बायोस्लरी आता है।
तो बायो स्लरी से हम दोनों कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट को हम FOM कहते हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, और लिक्विड कंपोनेंट को हम लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कह रहे हैं। उसकी रीसाइकिल भी हो जाती है क्योंकि वो माइक्रोबियल रिच होता है, उसको रीसाइकिल कर लिया जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है। अदरवाइज़ LOFM को भी हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं इन ए इरीगेशन चैनल इन द एग्रीकल्चर फील्ड। और जो गैस हमारे पास आई जिसमें 60% मीथेन है, उसको एनरिच करके 95%, जिसको हम प्योरीफिकेशन कहते हैं, उसमें 2 गैसेस का कंपोनेंट होता है, सेपरेट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और मीथेन को भी, और दोनों के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं। मीथेन की तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, उसको हम एज CBG यूज़ करते हैं। उसको हाई कंप्रेस्ड बायोगैस बना के उसके यूज़ हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, या आप किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, एज LPG को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, CNG को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, CNG में मिक्सिंग कर सकते हैं 20% 30%, और उसके CBG के अपने फ्यूल स्टेशन भी हैं प्योर 100%। जैसे एक प्लांट है बानासकांठा में, गोबर गैस प्लांट ही है, और उसमें फ्यूल स्टेशन है जहाँ पर CBG ही इंजन में यूज़ होती है, मोटर व्हीकल में यूज़ होती है। काफ़ी रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं पंजाब में खास करके? देखिए, हमने अभी पंजाब में फील्ड ट्रायल नहीं किए हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल नहीं किया है, और मैं जो है अगस्त में सुपर एनुएशन मेरा हो गया है। तो जो हमारी टीम है, जैसे मैं यहाँ पर एक तरह से चेन का काम कर सकता हूँ, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं कीनू को लेके, उसको हम ICAR में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे पैथोलॉजिस्ट हैं, माइकोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, दे में लुक इनटू दिस प्रॉब्लम और इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की सॉइल काफ़ी सलाइन हो गई है, वाटर टेबल डाउन हो गया है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हाई है, तो हमें इस तरफ भी बहुत ध्यान देना है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना है, वन डे और दी अदर। थैंक यू। वास्ते भारत सरकार ने तो बहुत बड़े उपराले किए ने, ये 2 मिशन लॉन्च किए ने। गोबरधन, जो भी अपना बायोमास है, चाहे पराली है या गोबर है, जो भी है, उन्होंने सही तरीके नाल संभालिया जाए ताकि ਜਿਹੜੇ मिथेन इमिशन है उन्होंने रोके जा सके और अच्छी खाद जिम्मेदारों को मिले। एक है PM प्रणाम। PM प्रणाम के तहत इनते उन्होंने सबसिडी भी दी है, इन्हें लाइसेंस तो भी मुक्त किया भी तुसी वध तो वध किसानों तक किसी भी माध्यम नाल पहुँच सको, तो जिंदे करके पहले बड़ियां रिस्ट्रिक्शन सी वो भी हटाती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स नूं ते यूनिवर्सिटीज़ नूं ये लिखा गया है भी तुसी दूसरी खाद दा, दूसरी जिहड़ी आली दी है या दूसरी है, उसकी वरतों बंद कराओ। उनके नाल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बीमारियां फैल रही ने, और उनकी बजाय इनू वरताया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट्स नूं उन्होंने इनदे ते इंसेंटिव भी दिता है भी तुसी जिन्ना कैमिकल फर्टिलाइजर घटाओगे, क्योंकि इहदे नाल इमीजिएटली जदों असी रिकमेंडेड डोज से जावांगे तो 50% कैमिकल की खपत घट जाएगी। तो वो उन्ना जो सबसिडी बचेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनका 50% स्टेट गवर्नमेंट को दिता जाएगा एज इंसेंटिव, जोड़ा कि वो डेवलपमेंट काम में वरत सकते हैं। देखो, ये सानू ये स्कीम लॉन्च हुई जुलाई 2023 के होया, और मैंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और काफ़ी फार्मर ने यूज़ किया भी है, झोने की बिजाई वेले भी, और हुण भी सानू बागां वालों तो अच्छी बुकिंग का और अच्छा एहसास मिल रहा है भी लोग यूज़, क्योंकि इस तो सस्ती सरकार की सबसिडी आने तो बाद इस तो सस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं। चाहे तुम गोबर की ट्राली पिंडा चो कचरा भी इकट्ठा करके लिया दो, वो भी महंगा पैदा। ये साफ सुथरी स्टरलाइज चीज़ तो सस्ते रेट च मिल रही है, तो क्यों ना करो। फार्मर वास्ते तो वरदान है। बहुत अज अहम लोड़ है इस गल की, तो जिहदे विच सानू पराली समूहगी भी ते बागां वास्ते जां दूसरे नॉर्मल खेतां वास्ते असी इहदा पूरा फायदा लै सकते हैं। तो असी सुनिया, इनू समझिया, तो अगे तो ये ते अमल भी करांगे। ते दुख नाल कहना पैंदा है भी असी टेलां दे उत्ते हैं, जिवें सारा वो टेलां दे उत्ते है, टाली वाला जट्टां, माहूआणा, होर कुछ पिंड जिहड़े बहुत ही अखीर ते है पानी बन्नियों,
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਏ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।